हेलो बच्चा लोग, once again welcome to चतुर्विद्या एंड आई एम योर संग्राम सर। चलो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो है पैंक्रियास। लिवर तो हम लोग देख लिए, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन ऑल पर्सपेक्टिव। लेकिन पैंक्रियास जो होता है, इफ यू talk something about digestion, then it is the gland. It is very much crucial gland in digestion perspective if you see. Okay, so this pancreas is basically, it's a heterocrine gland. What do you mean by heterocrine gland? Heterocrine gland means this is having both exocrine part as well as endocrine part. Means it has ducted part and non-ducted part. Means it secrete enzyme as well as it secrete hormone. So this is a heterocrine, it's a very crucial gland. Basically this pancreas is very small, it is around 2.5 centimeter in width and around 8 to 10 centimeter in length and about 60 gram in weight. It is very small gland found in the C of the duodenum. Basically it is found in the C of the duodenum. It is a C-shaped structure and in between the C this pancreas is present. We already discussed about the pancreatic duct वगैरह जो है तुम्हारा लास्ट क्लास में हम लोग स्टोमक जो क्या बोलते हैं इसको लिवर पढ़ रहे थे उस टाइम में हम लोग डिस्कस किए थे। आज इसका एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मॉर्फोलॉजी देखोगे तो इस तरह का एक ग्लैंड है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पैंक्रियास। इसमें देखना एक पार्ट जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है उसको हेड बोलते हैं एंड जस्ट नियरर टू द हेड देयर इज ए डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द नेक एंड इज द मेन बॉडी एंड इज द tail. This region, this tapering end is called as the tail. This tail is away from the duodenum and this head is towards the duodenum. And this pancreas give rise to one gland, that is a duct that is called pancreatic duct. You can see this duct is called as pancreatic duct. Pancreatic duct or duct of Wirsam और विर्सन्स डक्ट भी उसको बोलते हैं, पैंक्रेटिक डक्ट बोलते हैं, विर्सन डक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो पैंक्रियास है इसका तो हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ लिए, देख लिए मॉर्फोलॉजी एंड ये बहुत इसका जो डाइजेशन में बहुत क्रूशियल रोल होता है। उसका एनाटॉमी लेते हैं। लेट अस टेक द एनाटॉमी। एनाटॉमी अगर हम लोग लेंगे तो ये देखना तुम्हारा एनाटॉमी में इस तरह का तुमको स्ट्रक्चर्स दिखेगा। ये जो पेरीफेरी में दिख रहा है दीज आर द पैंक्रेटिक एसिनी, इसको बोलते हैं हम लोग पैंक्रेटिक एसिनी और एसिनर सेल्स। जैसे होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पेंटिंग वगैरह करते हैं, इस तरह से पेंटिंग करते हैं, उस तरह का दिख रहा है। देखो इसका ये हम लोग टीएस लिए हुए हैं तो ये साइड में देखना ये तुम्हारा पैंक्रेटिक एसिनी है। एंड ये जो पैंक्रेटिक एसिनी है ये कौन सा पार्ट है पैंक्रियास का? ये एक्सोक्राइन पार्ट है पैंक्रियास का। दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास। मीन्स ये एसिन जो है, एसिनर सेल्स, ये क्या करते हैं ना तुम्हारा एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया एक्सोक्राइन पार्ट हो गया। अभी इसका बाद में देखना ये सारे एसिनी जो है पैंक्रेटिक एसिनी ये एक सराउंड करते हैं एक टिश्यू को, एक एरिया जो सराउंड करते हैं। इट इज ए टिश्यू, इट इज द एरिया व्हिच इज ए एंडोक्राइन पार्ट और दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास एंड दिस एंडोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड एज islets of Langerhans. This endocrine part of this pancreas is called as islet of Langerhans. Means these endocrine part they don't have any duct, they directly secrete their product to the blood and they basically secrete hormones. So this islet of Langerhans, it contain various type of cells like alpha cells. These are up to 15% of the total pancreatic cells. Then beta cells, they are numerous, around 65% of the pancreatic cell. Then delta cell, this is around 5% of the total pancreatic cell, and PP cell. This PP cell is also called as pancreatic polypeptide cell. Polypeptide cell. These constitute around 15% of the total cell. So these type of cells are there in the pancreas, okay, or in the islet of
Langerhans. So it is clear this outer portion is the exocrine part and they connected to a duct, that is pancreatic duct. Here it is shown pancreatic duct, and this pancreatic duct is connected to all these acinis, pancreatic acinis, and in between there is a space, that space contains the islet of Langerhans, and islet of Langerhans is not connected through any duct. They directly pour their secretion into the blood, okay, and they secrete hormones. Now let us see about the different hormones and what are the role of the different hormones. These alpha cells, basically these alpha cells, they secrete glucagon. This glucagon is a diabetogenic hormone. It is a diabetogenic hormone, means it causes diabetes because it increases the glucagon, means it increases the what? Glucose level in the blood. These cells secrete glucagon, and this glucagon, what happen? It increases blood sugar level by glycogenolysis, means this glucagon help in the liver formation of glycogen to glucose, so it increases the blood sugar level, and that's why it is also called as diabetogenic hormone. Then what about these beta cells? Beta cells basically they secrete insulin. It's a very effective polypeptide, insulin. This is a protein hormone. Basically this hormone nature is protein. This is a protein hormone. You will study a lot of things about insulin. It's different type of chain, A chain, B chain, all in your class 12, okay, in biotechnology. And how this insulin, artificial insulin or human insulin is formed, that you will see in that point of time. So this insulin is a protein hormone, and basically this insulin it reduce blood sugar level. It reduce blood sugar level by glycogenesis. That was by glycogenolysis, means glycogen to glucose. Here it is glycogenesis, means glucose to glycogen. Whatever glucose will be there in the blood, that is changed into glycogen by the process this is by glucogenesis or glycogenesis, and that is done by these beta cells, okay. Then what is about the delta cells? Basically these delta cells, they secrete hormone somatostatin, and you know somatostatin is a hormone. Statin means it reduce this somatostatin reduce the secretion of insulin and glucagon. So somatostatin क्या करेगा? ये तुम्हारा insulin and glucagon दोनों का सेक्रेशन को रिड्यूस कर देगा, और ये क्या करेगा? ये तुम्हारा इवन तुम्हारा सोमाटोस्टैटिन जो है ये तुम्हारा इंटेस्टाइनल जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये एब्जॉर्प्शन भी डिले कर देगा. जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन को भी स्लो कर देगा और डिले कर देगा. सोमाटोस्टैटिन याद करो, सोमाटोस्टैटिन हम लोग कहाँ पढ़े थे? स्टोमक में भी हम लोग पढ़े थे, अर्जेंटाफिन सेक्रेटेड सोमाटोस्टैटिन, ठीक है. इंटेस्टाइन में भी होता है हम लोग का अर्जेंटाफिन सेल्स होता है, वो भी सोमाटोस्टैटिन सेक्रेट करता है. और एक जगह याद करना, सोमाटोस्टैटिन हम लोग का हाइपोथैलेमस से भी सोमाटोस्टैटिन सेक्रेट होता है, ठीक है. जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसका जो उल्टा होता है, और उसका जो एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का हम लोग क्या बोलते हैं? सोमाटोट्रॉफिन, ठीक है. एंड उसका जो एंटागोनिस्टिक हार्मोन होता है दैट इज सोमाटोस्टैटिन, ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा इंसुलिन, हो गया ग्लूकागोन, हो गया ये तुम्हारा इसको रिड्यूस करता है कौन? सोमाटोस्टैटिन, एंड ये फॉर्म होता है किससे? डेल्टा सेल से. अभी बचा तुम लोग का पीपी सेल. पीपी सेल और पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, ये भी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करता है. वो क्या करता है? रिड्यूस द सेक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एसिनी और पैंक्रेटिक जूस. ये पैंक्रेटिक जूस को रिड्यूस करता है सेक्रेशन बाय इनहिबिटिंग द पैंक्रेटिक एसिनी. इसका जो रोल क्या है? पीपी सेल का रोल क्या है? ये पैंक्रेटिक एसिनी को इनहिबिट करता है, एंड बाय दैट इट रिड्यूस द सेक्रेशन ऑफ पैंक्रेटिक जूस, ओके.
तो ये तुम्हारा हो गया पैंक्रियाटिक जूस। ये सारे जो सेल्स है ये लोग का काम क्या है ना, ये जो सारे सेल्स है हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स है, जैसे तुम्हारा अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल कौन कौन क्या क्या सेक्रेट करता है। और एक बार बता दूं, अल्फा सेल कौन करता है, ग्लूकोज सेक्रेट करता है, ग्लूकागोन, एंड ग्लूकागोन का काम क्या है ना, इसका काम है ग्लाइकोजेनोलिसिस, मींस ग्लाइकोजन को रिड्यूस करके, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाता है एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, जो कि डायबिटीज करता है। तो इसको इसलिए बोलते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन भी उसको बोलते हैं। देन हो गया हमारा ग्लूकागोन। ग्लूकागोन को क्या हम लोग बोलते हैं, ग्लूकागोन क्या करता है ना, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, मतलब जो ग्लूकोज ब्लड में है उसको ग्लाइकोजन करके लिवर में स्टोर कर देता है, मसल में स्टोर कर देता है, तो हो गया तुम्हारा ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसको हम लोग एंटी डायबिटिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसलिए इंसुलिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंसुलिन को हम लोग एंटी डायबिटिक हार्मोन भी बोल सकते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन भी बोल सकते हैं हम लोग इंसुलिन को। जैसे इसको डायबिटोजेनिक हार्मोन बोलते हैं, इसको हम लोग एंटी डायबिटिक हार्मोन भी बोल सकते हैं। फिर आ गया डेल्टा सेल। डेल्टा सेल का काम क्या है, ये तुम्हारा अल्फा सेल और बीटा सेल को क्या करेगा ना, वो ये करेगा, कंट्रोल करेगा, और द सेक्रीशन ऑफ अल्फा सेल बीटा सेल विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज डेल्टा सेल सेक्रेट सोमाटोस्टैटिन। और क्या करेगा, ऑब्जर्प्शन को डिले करेगा, जो हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्जर्प्शन जो है उसको भी डिले करेगा सोमाटोस्टैटिन। फिर हो गया हमारा पीपी सेल, जो कि बहुत ज़्यादा रहता है, कम से कम 15% तक पीपी सेल रहता है। वो क्या करेगा तुम्हारा, इट सेक्रेट ए पॉलीपेप्टाइड। पीपी सेल क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड सेक्रेट करेगा, एंड दैट पॉलीपेप्टाइड व्हाट इट डज, इट रिड्यूस द सेक्रेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस बाय इनहिबिटिंग द पैंक्रियाटिक एसिनी। ठीक है, ये हो गया एंडोक्राइन पार्ट। अभी लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट द एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो क्या है तुम्हारा, एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स क्या करेगा, इट सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। ये क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करेगा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नहीं भी तो और एक बार मैं बोल देता हूँ। पैंक्रियाटिक जूस में क्या रहता है ना, बहुत सारे एंजाइम्स रहता है, कुछ प्रो एंजाइम्स रहते हैं पैंक्रियाटिक जूस में। प्रो एंजाइम्स मतलब इनएक्टिव एंजाइम्स रहते हैं, जैसे कि तुम्हारा क्या है, ट्रिप्सिनोजेन, देन काइमोट्रिप्सिनोजेन, देन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब प्रो एंजाइम रहते हैं प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए। ठीक है, और क्या रहता है उसमें, एंजाइम्स रहते हैं, मतलब एक्टिव कुछ एंजाइम्स भी रहते हैं पैंक्रियाटिक जूस में, जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा एक्टिव एंजाइम्स में क्या हो गया तुम्हारा, जैसे तुम्हारा हो गया पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, पैंक्रियाटिक लाइपेज हो गया, ठीक है, इलास्टेज हो गया, न्यूक्लियस तुम्हारा रहता है उसमें, जैसे कि डीएनएच एंड आरएनएच, ये सब भी रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। एंड इसको छोड़ के पैंक्रियास में क्या रहता है, बाइकार्बोनेट आयन भी रहता है। ये क्या करता है ना, पैंक्रियास में बाइकार्बोनेट आयन रहता है। एंड ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है ये अल्कलाइन जूस होता है 8.4। एंड इसका मेन कॉज क्या होता है, ये क्या करता है ना, तुम्हारा जो एसिडिक फूड आता है तुम्हारा स्टोमक से डिओडनम में, उसको अलॉन्ग विथ बाइल दिस पैंक्रियाटिक जूस आल्सो मेक इट अल्कलाइन, सो दैट पैंक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें जो एंजाइम्स होता है वो अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। एंड इसमें बाइकार्बोनेट भी एक बहुत अच्छा रोल निभाता है। ठीक है, सो दिस पैंक्रियास इज बेसिकली स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन दैट इज कॉल्ड पैंक्रियोजाइमिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ये पैंक्रियास जो है ये एक हार्मोन से स्टिमुलेट होता है सेक्रेट करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस। ये पैंक्रियास अलॉन्ग विद द लिवर, इसको बोलते हैं हम लोग वो हार्मोन को कोलेसिस्टोकाइनिन। सो इट इज स्टिमुलेटेड, याद रखना, इट इज स्टिमुलेटेड बाय एन इंटेस्टाइनल हार्मोन, इंटेस्टाइनल हार्मोन। ये हार्मोन इंटेस्टाइन सेक्रेट करता है। क्या नाम उसका, इसका नाम है पैंक्रियोजाइमिन, पैंक्रियोजाइमिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। ज़्यादा नीचे तो नहीं हो जा रहा है बच्चा लोग, दिख रहा है कि नहीं? यस, थोड़ा सा
नीचे और जा रहा है, नहीं ठीक है चलेगा। सो ये हो गया तुम्हारा डिटेल अबाउट द पैंक्रियस। आज ए ग्लैंड हम तुमको बता दिए पैंक्रियस कहाँ है, ना पैंक्रियस तुम्हारा कहाँ पे रहता है, ना विद इन द सी ऑफ द डिओडेनम, डिओडेनम का जो सी होता है उसका बीच में रहता है, और ये पैंक्रियस का जो डक्ट होता है उसको पैंक्रेटिक डक्ट बोलते हैं। ये तुम्हारा हिपेटिक डक्ट जो लिवर होता है उसका कॉमन बाइल डक्ट जो आता है लिवर और इससे क्या बोलते हैं गॉल ब्लैडर से, उसके साथ मिलकर हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट बनाता है, एंड इस हिसाब से ये ओपन होता है डिओडेनम में। अभी पैंक्रियस का दो पार्ट पढ़ लिए, आउटर एसिनर सेल्स दैट इज द एक्सोक्राइन पार्ट, इट सेक्रेट द एंजाइम्स। अंदर में पढ़ लिए हम लोग एंडोक्राइन पार्ट जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो अभी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में सेल्स हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या सेल्स है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल। अल्फा सेल सेक्रेट करता है ग्लूकागोन, बीटा सेल करता है इंसुलिन, डेल्टा सेल करता है सोमाटोस्टैटिन, पीपी सेल करता है पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। बाकी क्या क्या किसका काम है वो पढ़ लिए। अल्फा सेल का काम है क्या है, ना ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, बीटा सेल का काम है ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करना, डेल्टा सेल का काम है दोनों को चेक करना, और पीपी सेल का काम है कि टोटल तुम्हारा पैंक्रेटिक जूस मतलब एक्सोक्राइन पार्ट को कंट्रोल करना। पीपी सेल का जो काम है वो एक्सोक्राइन पार्ट को कंट्रोल करना और उसका सेक्रेशन को रिड्यूस करना। ये हो गया तुम्हारा एंडोक्राइन पार्ट। अभी एक्सोक्राइन पार्ट तुम्हारा एसिनर सेल्स, ये सेक्रेट करेगा पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रेटिक जूस में क्या रहता है, उसमें रहेगा तुम्हारा पैंक्रेटिक एंजाइम्स, कुछ प्रो एंजाइम्स रहता है एंड कुछ एक्टिव एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे, एंड ये जो पैंक्रियस होता है इस स्टिमुलेट कैसे होता है ना, पैंक्रियस को स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन सेक्रेट होता है दैट इज कॉल्ड एज पैंक्रियोजाइमिन, और इसको बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, एंड दैट हार्मोन इज ए इंटेस्टाइनल हार्मोन, इट आर द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन। Okay, this is all about the pancreas. Sometime what happen, the pancreas get inflamed many times due to some stone, okay, due to some stone or due to some problem in the cystic means CBD, common bile duct and pancreatic duct, due to some problem in the pancreatic duct and common bile duct and also stone, pancreas become inflamed, pancreas become inflamed, pancreas inflamed, swell हो जाता है, एंड इसको बोलते हैं पैंक्रिएटाइटिस। ये बहुत ही डेंजर डिजीज है, ये होने से लाइफ का रिस्क बहुत रहता है, ठीक है। जनरली जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके पैंक्रिएटाइटिस होने का बहुत चांसेस रहता है, ठीक है। दैट इज अल्कोहलिक पैंक्रिएटाइटिस होता है, और नॉर्मली भी कुछ स्टोन्स वगैरह बनने से भी अगर कोई पैंक्रियस में स्टोन चला गया कुछ चला गया तो पैंक्रियस में स्वेलिंग होता है, उसको बोलते हैं पैंक्रिएटाइटिस, एंड इट्स वेरी डेंजरस, इट नीड टू बी ट्रीटेड विथ utmost केयर, okay. So this is all about your pancreatitis, and sometime also there are tumors or cancer happen in the pancreas, that is pancreatic carcinoma or pancreatic cancer, okay. So these are all about the pancreas, the heterocrine gland, and it is very crucial gland, and इसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, see you।